Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. A very good afternoon to one and all present here. Before I begin with today's event, I would like to take a minute to thank our Honorable Home Minister, Mr. Mohammad Mahmood Ali Saheb, for taking out time from his busy schedule and honoring us with his presence as the chief guest for our esteemed event. Let us begin this event with Khairat-e-Kalam Pak recited by Nahida Anjum of grade 10. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Suratul Alaq. Iqra bismi rabbikal ladhi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم صدق الله العظيम. दूध से शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। पढ़ो अपने रब के नाम से जिसने तुम्हें पैदा किया। उसने इंसान को जमे हुए खून से पैदा किया। पढ़ो और तुम्हारा परवरदिगार सबसे ज़्यादा करम वाला है जिसने कलम के ज़रिए इल्म सिखाया, इंसान को उस बात की तालीम दी जो वो नहीं जानता था। सदक़ल्लाहुल अज़ीम. And shawl to our Honorable Home Minister by Mr. Umair Abdul Khader. Educational Society will be honored by Munir Ahmad Kamran Seth. School President Mr. Masood Abdul Khader to welcome our guest with his kind words. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. It gives me immense pleasure to welcome our Honorable Home Minister Al-Haj Muhammad Mahmood Ali Sahab, Honorable Home Minister, Government of Telangana, Mr. Zafar Javeed, Honorary Secretary, Sultan of Educational Society, all the dignitaries, parents of the students, young students who inshallah will be the leaders of tomorrow. With my welcome address, I just want to put 3 or 4 points before the Honorable Minister and all the gathering. In the year 1899, one Maulana Shah Muhammad Hussain Khadri started this institution with 7 students in Urdu. It was started in a thatched tin roof at Khazi Gali, Nallagutta, Secunderabad. The visual of the school which was started in 1899 is in the catalogue. In the year 1941, the managing committee acquired 1,000 square yards of land on which the school is existing from the government of British government for a lease period of 90 years at ₹5 per annum. In 1986, we started the English medium school in this institution. In the year 2013, the government gave an opportunity to get it freehold, and we utilized that opportunity and got this land freehold, and alhamdulillah, today this land is in the name of the institution. I also have great pleasure in informing you that the results of this HSC examination were 92%, and one student secured 92%, one student secured 82%. The main reason for calling this function today was that in the year 2022, even during the winter season, we were seeing that
the children in the school assembly were falling down and becoming giddy. Medical diagnosis informed that it is nothing but malnutrition. They were not having any dinner, they were not having any breakfast. Hence, the management decided that we should give nutritious breakfast free of cost to the school students. The main crux of this function is to give encouragement to our students also that inshallah nutrition will not be a problem here. Before concluding, I extend my sincere thanks to the Honorable Home Minister for agreeing to visit this small institution and then grace our occasion. At this point, one important point has to be put across to all of you. 2 years before, a computer lab was created, but we were all very worried, how are we going to run this? In this case, Allah Pak gave guidance, and Alhamdulillah, Mr. Zafar Javed, the Honorary Secretary of Sultan of Education Society, made 10 computers as donation to this school from their society. I thank him and say Allah give him Jazakumullahi Khaira. I also thank many of my donors who have also contributed to this scheme and gave me the strength and boldness to go ahead. Even though financially it appeared to be very, very difficult, but Allah has helped, and Alhamdulillah, today we have come to a situation when it is being inaugurated. Assalamu alaikum. Introduction of free breakfast to students by distribution of milk and banana by our Honorable Home Minister. बोलिए सादवी said, education is the most powerful weapon to change the world. To encourage this, we now have the presentation of checks by our Honorable Home Minister from Khan Sahib and Begum A.S. Abdul Khader Trust and Mrs. Atika Bai. On 9.0 points with a check of rupees 5,000. This kudos kids, we are proud of you both. Actions speak louder than words, and who better than Mr. Jamil Ahmed Qureshi, who has been the principal of Ziaul Islam High School for 50 whole years, has set an example to each and everyone sitting here. He is and I think words cannot describe how much he has contributed to the school, society, and helped so many people achieve the heights they never imagined they could. With all this in mind, the school committee would like to call upon our Honorable Home Minister to hand over the parents to give the gentleman a round of applause. We would now request with us. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। आज हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है कि स्कूल में आज कंप्यूटर लैब का इनाग्रेशन किया गया। यकीनन मुसलमानों के लिए सबसे अहम चीज़ है वो तालीम है। तालीम के बग़ैर हम तरक्की करना नामुमकिन है। और जो लोगों ने
शुरू से बेड़ा उठाया है, मैं उनको दिल की गहराइयों से मुबारकबाद आता हूँ। ज़ियाउल इस्लाम स्कूल जो सिकंदराबाद में क़ायम हुआ है, ये 3 जुलाई 1942 से चल रहा है। मैं दिल की गहराइयों से अब्दुल ख़ादर साहब को जो फैमिलीज़ को मुबारकबाद देता हूँ, और मुसलसल ये जनरेशन से वो लोग खिदमत करते आ रहे हैं, और इनका बहुत बड़ा बिज़नेस हैदराबाद सिकंदराबाद में बहुत बड़े मशहूर शख्सियत है। मुझे अच्छा याद है जब मेरा इंगेजमेंट हुआ था तो मुझे कपड़े कहाँ से लेना हुआ था, अब्दुल ख़ादर एंड सन्स की दुकान से आकर लिया था मैं। अब मैं समझता हूँ 1972 की बात है ये। तो उस ज़माने से आप लोगों से मेरे मरासिम में, और उस ज़माने से आप लोगों की शोहरत है। अल्लाह का करम है कि इंसान बहुत कुछ करता है, मगर सबसे अजीम इंसान वो होता है जो तालीम देता है। आज हम लोग तालीम में पीछे होने की वजह से बहुत मुश्किलात से गिरते जा रहे हैं दिन ब दिन, क्योंकि मुसलमान हम देख रहे हैं बहुत छोटे छोटे पेशे से वाबस्ता होना पड़ा है, इस वजह से कि एजुकेशन ना होने की वजह से। ख़ास तौर से स्कूल के हमारे जो चेयरमैन साहब है जनाब मसूद अब्दुल ख़ादर साहब को मैं दिल गहराइयों से मुबारकबाद देता हूँ, और प्रिंसिपल साहब मोहम्मद जमील कुरैशी साहब, और हमारे ज़फ़र जावेद साहब जो सेक्रेटरी सुल्तान उलूम एजुकेशन सोसाइटी है, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। और ख़ास तौर से खान लतीफ़ खान साहब को मैं अभी भी याद करते रहता हूँ। आप दोनों ने मिलकर एजुकेशन के बारे में जो काम किया है, क्योंकि हम बचपन से हम ख्वाहिश जब से हम बड़े हुए, जब हमारे बच्चे स्कूल जाने की नौबत है तो हम स्कूल तलाश करते रहे कि कहीं मुसलमानों के स्कूल में बच्चे को दाखिला दिला जाए, मगर कहीं पर भी स्कूल नज़र नहीं आया। हमें आखिरकार लिटिल फ्लावर आल्सेंस ऐसे स्कूलों में अपने बच्चों को पढ़ाना पड़ा, मगर आज अल्लाह के फल से बहुत से मुस्लिम लोगों ने अच्छे अच्छे मदरसे क़ायम किए हैं, और देखता हूँ बहुत अच्छी अच्छी तालीम होती है। क्योंकि कुछ दिन पहले एक शख्स ने मेरे पास आकर एक कल्चरल प्रोग्राम का इफ्तिताह के लिए रिक्वेस्ट की थी, तो बताया कि मैं बॉम्बे से स्टार को बुलाया हूँ। उसकी मैं पूछा क्या चार्जेस है, तो उसने कहा कि 45 लाख है। मैं बोला ये सब वेस्ट करने के बजाय बच्चों के लिए कुछ ना कुछ कीजिए। क्या करना साहब? बोला जो बच्चे टॉप क्लास में पास होते हैं उन लोगों को अच्छे से कुछ गिफ्ट दीजिए या प्राइजेस दीजिए। क्या देना चाहिए? मैं बोला जो भी आपकी हैसियत के हिसाब से दीजिए। तो बोले 5-5 हज़ार रुपये, मतलब 5 हज़ार नहीं, कम से कम 10 से 15 हज़ार 20 हज़ार दीजिए। मैंने कहा खाली हमारे मुनीब साहब जो हमारे ऑफिसर है हमारे, तो उनसे मैं कहा कि ज़रा मालूम करो। उन्होंने कहा अच्छी बात हो। MSc स्कूल को फ़ोन करने पर वहाँ 12 लड़कियाँ 100 में से 100 मार्क्स लाने वाले मिले, अल्लाह का शुक्र है आज। तो इतना आज के टाइम पे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, बड़े प्राउड की बात है हमारे मुस्लिम इदारे। और मैं ख़ास तौर से ज़फ़र जावेद साहब का बहुत दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि कौम को हमें तालीम चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। तालीम अगर हमारे कौम को देंगे तो यकीनन मुस्लिम बहुत इंटेलेक्चुअल है, ऐसी बात नहीं है, हर बुराई से भी बचे हुए दूसरी कौमों के बनिस्बत, मगर एक तालीम से पीछे होने की वजह से हम बैकवर्ड होते जा रहे हैं। तो हम अल्लाह से भी दुआ करते हैं, और जो लोग तालीम के लिए आगे बढ़ते हैं यकीनन अल्लाह से दुआ करते हैं अल्लाह ताला और हिम्मत दे, और उन जिस तरीके से गैबी सपोर्ट हो, और हमारे जो वेलफेयर देने के लिए जिसके अंदर जो लोग फ़ंड देते हैं उनका भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। और जनाब उमर अब्दुल ख़ादर साहब जो फर्जन साहब है, बहुत उनको मैं मुबारकबाद देता हूँ, कहता हूँ कि आप इसको आगे बढ़ाइए, ज़माने के साथ आगे बढ़ते जाइए। पुराना ज़माना था, हमारे वालिद साहब या दादा साहब ने जो शुरू किया था, इसको आगे बढ़ाइए। इंशाल्लाह एजुकेशन फील्ड अच्छी भी है, नुकसान होने वाली भी फील्ड नहीं है कि ऐसा नहीं है कि आपका पूरे का पूरा सरमाया लॉस हो जाएगा। आज देख रहे हैं हम कई लोग हमारी पार्टी के, हम देखते हैं हम मल्ला रेड्डी साहब एक डेयरी फार्म चलाते थे, चिट फंड चलाते थे, आज देखें तो आज बड़ी यूनिवर्सिटी का परमिशन मिल चुका है। तो मैं अभी हमारे ख़ास तौर से ज़फ़र भाई से कहा कि आपके पास एक लॉ कॉलेज था, एक ही मुस्लिम लॉ कॉलेज था, क्योंकि मैं जब देखा कि हमारे पास एक माइनॉरिटी के लिए लॉ कॉलेज था और एक लॉ कॉलेज का भी कहा कि इस्लामी कॉलेज को मैं परसों बोलकर CM साहब से परमिशन दिलाया, तब 2 लॉ कॉलेज हो जाएंगे हमारे मुस्लिम एरिया के अंदर। बहुत हमारे लिए अच्छी बात रहेगी। और जितने हमारे यहाँ पर हमारे भाई आए हैं, यकीनन मुझे भी आज प्राउड है। ये स्कूल छोटे की बात नहीं, मैं बहुत जगह जाता हूँ, मेरा भी पॉलिटिकल फील्ड का मैं भी ज़फ़र जावेद साहब से कहा, क्योंकि मेरे बहुत ख़ास दोस्त भी है, वो हमेशा बड़ी मोहब्बत से मिलते हैं और हमेशा हमारी हर बात पर बहुत हमारा साथ भी देते हैं। तो मैं कहा कि मेरा भी जब मैं बड़ा होने के बाद, जब मेरी शादी होने के बाद, मेरे बच्चे होने के बाद एडमिशन दिलाने के लिए बड़ी दिक्कत पेश आ रही थी। एडमिशन मैं चाहता था कि हम मुस्लिम इदारे में एडमिशन दिलाया जाए, ताकि बच्चे दीनी तालीम भी हासिल कर सके, उर्दू ज़बान भी सीख सके, और हमारे माशरे की तरक्की के साथ उनके साथ में उनको मालूमात हो सके। पर काफ़ी ढूंढने के बाद कहीं नहीं मिला, तो पहले मैं अपने बच्चे को तो लिटिल फ्लावर में दिलाया था। लिटिल फ्लावर से पास होने के बाद जब ग्रैंडसन का मसला आया तो मुझे मद्रास भी जाना पड़ा था, वहाँ इंस्टीट्यूट के अंदर से, वहाँ बहुत अच्छी तालीम थी। तो आज अल्लाह के फल से मैं देख रहा हूँ हमारे पास बहुत से इदारे कायम होते जा रहे हैं और बहुत अच्छी तालीम मिल रही है, और मैं चाहता हूँ कि और भी बहुत कुछ होना चाहिए। देखिए असातिज़ा जो होते हैं वो बड़ी खिदमत करते हैं अपने स्टूडेंट्स की। दुनिया में 2 इंसान होते हैं
जो सबसे ज़्यादा खुश होते हैं अगर किसी की तरक्की पर, वो होते हैं कि उस्ताद, और दूसरे बात होते हैं तो माँ बाप। तो इसके लिए उस्ताद की भी बड़ी अहमियत होती है, उस्तादों की कदर करना चाहिए, रेस्पेक्ट देना चाहिए, और अच्छे से अच्छे लोगों को अच्छी से अच्छी पे भी होना चाहिए। उसके लिए मैं यही गुजारिश करूँगा, क्योंकि दुनिया के जितने लोग हैं, जब हमारे कलाम साहब जो हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रहे, उनसे पूछा गया कि आप, वैसे तो हमारे पास नहीं है वो जन्म में, मैं कोई हिंदू जर्नलिस्ट से पूछा कि आप दूसरे जन्म में अगर बनना चाहते तो क्या बनना चाहते, तो उन्होंने कहा मैं अगर दूसरे जन्म में तो पैदा होऊंगा तो मैं टीचर बनना चाहता हूँ। तो वो टीचर्स का उतना बड़ा मुकाम होता है, उतनी बड़ी इज्जत होती है यकीनन, और रात दिन मेहनत करते हैं। और हमारी तेलंगाना स्टेट जो बनी है, ये 9 साल पहले बनी है। 9 साल के अंदर जो तरक्की हुई हमारी स्टेट के अंदर, उसकी मिसाल इंडिया में नहीं मिल सकती। ये मेरी पार्टी की बस नहीं, और मैं खुद भी पॉलिटिकल आदमी नहीं हूँ, मगर मैं सिर्फ तेलंगाना के हासिल और अपनी कौम से, सीएम साहब मुझसे इस बार पूछे थे जब मैं 2001 में पार्टी फॉर्म हुई थी 27 अप्रैल, तो मैं समझता हूँ शायद जनवरी में मैं जाके उनसे मिला था। तो महमूद भाई आपका क्या मकसद है, क्या चाहते हैं? मैं चाहता था, मैं बोला साहब मेरा एक ही मकसद, मेरी कौम को तालीम, क्योंकि तालीम ही सबसे बड़ी चीज़ थी। तो आइए आप हमारे साथ जुड़ जाइए। तो हम जुड़ते रहे, अल्लाह के फल से, आप लोगों की दुआओं से अल्लाह ने बहुत बड़े मौके दिए जो लोगों को नहीं मिलते, मगर अल्लाह ताला ने मुझे अता किया। तो आज हम जो बताना चाहता हूँ कि 204 रेजिडेंशियल स्कूल चल रहे हैं हमारे पास। 65 साल हमसे पहले भी दूसरे हुकूमत ने हुकूमत की, सिर्फ 65 साल में 12 रेजिडेंशियल स्कूल थे। सीएम साहब ने मुझे कहा था कि 500 खोलेंगे, मगर ज़रा हमारे से सेंट्रल से बहुत झगड़ा होने की वजह से, बहुत से फंड्स रुकने की वजह से सारे कौमों को एक साथ खोलना पड़ता है। तो आज 204 स्कूल में 1,40,000 लड़के और लड़कियां पढ़े, और 58,000 तो लड़कियां पढ़े। जब तमाम पॉलिटिकल पार्टी के लीडरों को बुलाया गया था, मुस्लिम लीडरों से, तो लोगों ने कहा कि सीएम साहब से कहा कि नहीं साहब, लड़कियों को ज़रूरत नहीं है, खैर लड़कों को तालीम दीजिए। सीएम साहब बोले कि देखिए आप लड़के को तालीम देंगे तो बेचारा जा के मेहनत करके पैसा कमा के लाएंगे, अगर लड़की को तालीम देंगे तो घर को संवार देंगी वो। लड़की की तालीम बहुत ज़रूरी है। अगर माँ एक तालीम याफ्ता होती तो आगे के जनरेशन पूरी तालीम हासिल करेगी। सीएम साहब ने उसके खिलाफ रेजिडेंशियल स्कूल बंद करे, तो हर जगह लेडीज़ का आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते बढ़ते डिमांड, आज 58,000 लड़कियाँ जो है पढ़ते हैं, वहाँ पर बहुत अच्छी तालीम दी जाती है। मैं 2-4 दिन पहले बशीराबाद एक स्कूल में गया था, टेमरिस का, वहाँ 100% रिजल्ट था। तो हमारे बचपन में अगर किसी स्किल का 100% रिजल्ट तो उसको तो बहुत बड़ा स्कूल समझते थे। मामूली स्किल के अंदर 100% रिजल्ट है। जितने बच्चे मैट्रिक में बैठे थे पूरे के पूरे पास हुए, और उसमें 85% के अबाव फर्स्ट क्लास पास हुए। और जो रैंक ला रहे हैं लोग 92%, 93%, 95%, आजकल उन्हीं बच्चों का फ्यूचर है जो अच्छे हाई लेवल से अच्छी तरीके से पढ़ते हैं। तो मैं यही आज के इस बात ख़ास तौर से मैं हमारे चेयरमैन साहब मसूद अब्दुल कादिर साहब को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देता हूँ। एजुकेशन देना बहुत बड़ी बात है। दुनिया में जो सबसे अजीम वो आदमी होता है जो तालीम की तरफ तवज्जो देता है। और बदकिस्मती ये रही कि हमारे जब मुस्लिम कंट्रीज़ के अंदर बेहिसाब दौलत आई, तो वो लोगों ने समझा कि भाई थोड़ा सा पैसे दीनी मदरसे को दे दो, खामोश बैठ जाओ। दीनी मदरसे तो ज़रूर देना चाहिए, मगर साथ साथ दुनिया तालीम भी होने, साथ में दीनी तालीम भी होना चाहिए। अगर हम पूरे के पूरे आलिमा बनते चलेंगे, हम इमाम मौजन बनेंगे, तो फिर कमाएंगे क्या, देंगे क्या दुनिया। तो इस्लाम में कई लोग मुझसे पूछते हैं, और गलत रूमर से लोगों में, अरे मुसलमानों में तालीम देना मना है, ख़ास तौर से औरतों को तो बिल्कुल मना है। मैं कई बताते रहता हूँ, ऐसी बात नहीं है। अगर किसी मज़हब में तालीम के बारे में कोई नाजिल हुई सूरत, तो वो इस्लाम में नाजिल है, कुरान में नाजिल है। दूसरी मज़हबों में उतनी अहमियत नहीं है जितना इस्लाम के अंदर है। हमारे पास तो कई एक हदीस है कि तालीम के लिए आप चीन तक जा सकते हैं। तो मतलब दुनियावी तालीम भी बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। तो हम दोनों में भी अगर हम कामयाब रहेंगे तो हमारा फ्यूचर भी, मुस्तकबिल अच्छा रहेगा, और हम आखिरत भी अच्छी रहेगी। तो आज ख़ास तौर से इस इदारे के जो ज़िम्मेदार आज तक काम करते आते हैं और मुसलसिल इसको आगे बढ़ाते रहे, मैं अल्लाह से यही दुआ करूँगा कि ख़ास तौर से हमारे होनार अब्दुल कादिर साहब को मैं वही गुजारिश कर रहा हूँ कि आप वालिद साहब, दादा साहब जितनी तरीके से काम किए हैं, आप आगे बढ़िए, हम आपके साथ हैं। जो हुकूमत से चाहिए, हम अपने आप को, हम आपका खादिम समझते हैं, मिनिस्टर नहीं समझते। जब भी जो हमारे पास आता है तो हम उसे बहुत रिस्पेक्ट देते हैं, उसके क्या तकलीफ़ है वो दूर करते हैं। पहले की थोड़ी अलग थी मिनिस्ट्री, और हमारा स्टाइल कुछ अलग है। हम समझते हैं कि हम तो हुकूमत के मुलाजिम हैं, तनख्वाह देती है हुकूमत, और हम रोज़ काम भी वैसी करते हैं। शायद कोई आज मुसलमान मिनिस्टर, इस मौके पर 2 बार भी, पहले मुझे रेवेन्यू मिनिस्टर दी गई, जो हिंदुस्तान आज़ाद होने के बाद पहला रेवेन्यू मिनिस्टर मैं रहा। सेकेंड टाइम मुझे
होम मिनिस्ट्री दी गई, ये भी काफ़ी ज़माने के बाद मैं समझता हूँ MM हाशिम साहब, मीर अहमद अली साहब बने थे, वो लोग भी शायद 7-8 महीने से ज़्यादा 1 साल के अंदर नहीं चला सके। तो आज अल्लाह के फल से आप लोगों की दुआ से मुकम्मल तरीके से ये मियाद पूरी हो रही है। हम यही चाहते हैं कि जितना हो सके सारे कौम की खिदमत करें, मगर मुसलमानों की सबसे ज़्यादा खिदमत करें। इसलिए कि हर कमेटी से एक मिनिस्ट्री दी जाती है, किसी कमेटी में 2-2, 3 भी मिनिस्टर, तो उसका फ़र्ज़ होता है कि सबके साथ काम किए करें, साथ ही साथ अपनी कमेटी को भी ख़ास तौर से देखें। तो हम ये समझते हैं कि जितना भी हम अपनी कमेटी के लिए वर्क करेंगे तो यकीनन हमारे लिए बेहतर रहेगा और हमारी कमेटी के लिए बेहतर रहेगा। तो मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि दादा साहब का जो सपना है उसे आगे बढ़ाइए। देखिए आज अल्लाह के फल से सुल्तान उलूम कॉलेज जिस तरह आगे बढ़ा है और भी आगे बढ़ाइए इंशाल्लाह। कई लोगों को मैं देखता हूँ, नॉन मुस्लिम लोगों को 25-30 साल के अंदर कई मेडिकल कॉलेज खुल सके, इंजीनियरिंग कॉलेज तो बेहिसाब बन चुके हैं, और CM साहब भी एजुकेशन को बहुत ज़्यादा अहमियत दे रहे हैं। इस मरतबा तो सिर्फ 720 करोड़ रुपये तो स्कूल को, तमाम स्कूलों के लिए सेंक्शन किया गया, खाली वहाँ का बेंचेस जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको डेवलप करने के लिए। CM साहब बहुत अच्छा बजट हर तरीके से, क्योंकि तेलंगाना स्टेट बनने के बाद से जितना तरक्की की है उसकी मिसाल हिंदुस्तान में नहीं मिल सकती। और ख़ास तौर से स्टेट बनने से पहले हमारे पास 10 डिस्ट्रिक्ट थे, 10 डिस्ट्रिक्ट में सिर्फ हैदराबाद फॉरवर्ड था, 9 डिस्ट्रिक्ट बैकवर्ड थे। आज अल्लाह के फल से CM साहब ने उसे 33 डिस्ट्रिक्ट में डिवाइड किया, और लैंड ऑर्डर इंडिया में नंबर 1 है तो इस वक्त तेलंगाना स्टेट का है। और साबिका में 1947 से लेकर 2014 तक हैदराबाद में, तेलंगाना में फिसादात हुआ करते थे, कभी भी कंट्रोल नहीं कर सके। मगर तेलंगाना बनने के बाद आज तक 1 मिनट का भी कर्फ्यू किसी एरिया में नहीं लगा है। अमन अगर है तो तेलंगाना स्टेट के अंदर है, गंगा जमुना तहजीब है तो तेलंगाना स्टेट में। और यहाँ पर मुसलमानों को हर तरीके से आज़ादी है, ऐसा कहीं पर भी नहीं है। एक तो पहली बात तो है कि मुस्लिम को होम मिनिस्टर बनाना आसान काम नहीं है। CM साहब को उतना एतमाद था, क्योंकि होम मिनिस्ट्री का पोसा आप देखिए सारे हिंदुस्तान में 50% तो चीफ मिनिस्टरों के पास है, 50% शायद कुछ लोगों को जो अहम कास्ट के लोगों को देते हैं, अलायंस पार्टी में देते हैं। मगर CM साहब ने होम मिनिस्टर देकर मुसलमानों को बताया कि आपके आदमी को हम जो होम मिनिस्टर दिए हैं, ताकि इसलिए कि आपको कॉन्फिडेंस बढ़े, कि आपको कॉन्फिडेंस में वीक ना है। कभी होता है कि पुलिस का बहुत बड़ा एक अहम रूल होता है, अगर वो अच्छी तरीके से लोगों से बर्ताव करे, उनका जस्टिस करे, तो डेफिनेट उनमें हिम्मत अफजाई होती है। तो मैं हमारे CM साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ, और ये जो भी मिला है हमारे भाइयों की दुआओं से मिला है। और मैं ये कोशिश करता रहूँगा कि आपकी खिदमत आऊँ, जितनी मेहनत हो सके, जितना काम हो सके। ख़ास तौर से एजुकेशन बहुत अहम चीज़ है। एजुकेशन में अभी बताया गया, इसके अलावा दुनिया का हर शख्स यही चाहता है कि जब तक हम अपने बच्चों को, अपनी कौम को एजुकेट नहीं करेंगे तो हम तरक्की किस तरह करें। और मुसलमान कौम इससे पहले साबिका ये 600-700 साल में बैकवर्ड हो चुकी है। मुझसे पहले तो हिंदुस्तान में 800 साल हुकूमत की है, मामूली बात नहीं है कि 800 साल हुकूमत करना। हमारी स्टेट के अंदर 350 साल हुकूमत की है। ये इंटेलेक्चुअल थे। आज चूँकि एजुकेशन की तरफ हम लोग भी तवज्जो नहीं दिए, दौलतमंद लोग भी तवज्जो नहीं दिए। लोग समझ गए थोड़ी ज़कात दे दो बस ख़त्म है, कोई दीनी मदरसा है कुछ पैसे दे तो ख़त्म। मगर तालीम सबसे अहम चीज़ है, तालीम पर तवज्जो देना। तो हमारे ख़ास तौर से हमारे भाई मसूद अब्दुल क़ादिर साहब को मैं बहुत मुबारकबाद देता हूँ। आपके वालिदैन में बिज़नेस करते हुए जो बहुत अच्छा काम शुरू किया, जिसकी वजह से हज़ारों बच्चे आज तक हर साल कुछ पास होते जाते रहते हैं आपसे पास से। तो अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ आपके इस इदारे को और तरक्की दे और आगे बढ़ाइए। और हुकूमत से जो भी चीज़ की ज़रूरत है, मैं आपका खादिम हूँ, आपके साथ हूँ, आपके साथ हमेशा रहूँगा। जो की ज़रूरत है आप बताइए, हम हमेशा आपकी खिदमत करने के लिए तैयार है। मुझे जो बुलाया गया है, मुझे जो वक्त दिया गया है, मैं दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ। अल्लाह से दुआ करता हूँ कि आपके इदारे को और तरक्की दे और तरक्की दे। थैंक यू, शुक्रिया। Truly inspirational. I would like to call Mr. Zafar Javed, Secretary of Sultanul Uloom Educational Society, to address the gathering. इज़्ज़त माफ़ वज़ीर दाखिला हुकूमत तेलंगाना आली जनाब मोहतरम मोहम्मद महमूद अली साहब, मसूद अब्दुल क़ादिर साहब सदर ज़ियाउल इस्लाम ट्रस्ट, प्रिंसिपल साहब, सिकंदराबाद के मोअज़्ज़िज़ीन जो यहाँ तशरीफ़ फरमा हैं और जो तालीम से जुड़े हैं, सारे लोगों को जो है खैर मक़दम करता हूँ।
प्रोटोकॉल के हिसाब से मिनिस्टर साहब के बाद जो है मैं वाकिफ़ हूँ मसूद अब्दुल क़ादिर साहब के जज्बात से, और जो फ़िक्र से ये इदारा चलाते हैं वो काबिल तारीफ़ है। और आज उस फ़िक्र का हम नतीजा देख रहे हैं कि ज़ियाउल इस्लाम जो है एक अच्छा इदारा सिकंदराबाद का उभर के आया है, और मैं समझता हूँ कि इनकी सदारत में और रहनुमाई में इंशाअल्लाह मुस्तक़बिल में भी ये इदारा और तरक्की करेगा। महमूद अली साहब से मेरे बड़े अच्छे ताल्लुक़ात हैं, और उनके जो कई सिफ़ात में जो चंद अहम सिफ़ात हैं जिससे मैं मुतासिर हूँ, वो ये कि जो है मोहतरम की जो है सादगी, यानी कभी महसूस आवाम को या कौम को नहीं करवाए कि जो है वो मंत्री हैं। खैर सियासतदान खादिम बोलता अपने आप को, मगर जो है अब वाकई में जो है यानी जिस तरीक़े से पेश आते आप, आपकी सादगी को जो है सलाम सब। और जहाँ पर मैं आपके उस जुमले की तस्दीक़ करता हूँ कि जहाँ पर लफ्ज़ तालीम आता है, साहब जो है लब्बैक कहते हैं, चाहे वो कोई इदारा हो। और मुझ जैसे खादिम तालीम जो है आपके मशकूर हैं साहब, कि हम जब कभी जो है आपको ज़हमत दिए, आप हमको जो है इज़्ज़त से नवाजा, और जिस तरीक़े से दीगर इदारों को भी आप तालीम से जुड़े हुए जिस तरीक़े की इनकरेजमेंट करते हैं, वो काबिल तहसीन और काबिल क़दर है। इस तरह के अगर गुज़रा और हो जाएं तो मैं समझता हूँ कि दिन कौम कहाँ से कहाँ चले जाएगी। इंशाअल्लाह ये मेरी नज़रों में जो है बहुत अच्छे रहनुमा हैं कौम के, क्योंकि बुनियादी चीज़ को जो है इस कदर इनकरेज करते हैं और अहमियत समझते हैं। तालीम की अहमियत समझना जो है एक बहुत बड़ी बात है, और फिर उनको हिम्मत अफजाई करना जो है और एक बहुत अहम चीज़ है। साहब आपसे मैं इंकशाफ करूं कि आपकी मौजूदगी वज़ीर दाखिला की हैसियत से न सिर्फ़ हमको बल्कि सारी कौम को जो है हिम्मत है आपसे, और अल्लाह आपको सेहत से नवाजे, अल्लाह आपको आपके जो काविशें हैं, आपकी जो रहनुमाई है उसको जो है और संवारे, और मसूद अब्दुल क़ादिर साहब की सरपरस्ती में ये इदारा दिन दूनी रात चौगनी जो है तरक्की करे। और आप सब साहिबीन जो तशरीफ़ फरमा हैं यहाँ पे, मैं जानता हूँ कि जो है आप लोग सिकंदराबाद में बहुत ज़िम्मेदारी का काम करते हैं, चाहे वो मस्जिद का हो, ईदगाह का हो, तालीमी इदारे का हो, हर चीज़ में जो है आगे बढ़कर जो यहाँ पर रहनुमाई करते हैं इस इलाक़े इस खित्ते में, वो काबिल तारीफ़ हैं। खलील साहब भी तशरीफ़ फरमा है, वो भी तालीम से बहुत अच्छी तरह जुड़े हुए हैं। तो ये सारे के सारे अगर जो है ज़रा और तवज्जो दिए, ईसार थोड़ा करे, तो मैं समझता हूँ कि जो है कौम के हालात इंशाअल्लाह और बहुत बेहतर होंगे। काफ़ी तरक्की हुई है साहब। पहला इंजीनियरिंग कॉलेज जैसा कि आप जानते हैं कि मुफ्त हमजा कॉलेज था स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश में, प्राइवेट सेक्टर में, और उसके बाद में जो है कई इदारे खुलते गए, मगर जितने भी इदारे खुले सर वो कम है, क्योंकि हम इतने पिछड़े हुए हैं कि, और बुनियादी तालीम के ऊपर बीच में क्या हो गया साहब कि ये प्रोफेशनल कॉलेज में कुछ मुनाफा, आप जैसा फरमाए मल्ला रेड्डी जो है डेयरी फार्म से यूनिवर्सिटी बना डाले, 2 मेडिकल कॉलेजेस हैं उनके, तो ये चीज़ें देखकर जो है लोग क्या करें, प्रोफेशनल कॉलेजेस खोलना शुरू करें साहब। मगर जब तक आपका ने बुनियादी तालीम ना हो, आपका ने अच्छे स्कूल ना हो, उसमें जो है आप वो कौम तरक्की नहीं कर सकती साहब, क्योंकि सीधा जो है आप इंजीनियरिंग में लैंड नहीं हो सकते। आप हुकूमत से मेरी ये चंद 2 दरख्वास्तें हैं साहब। ये एक स्कीम टोटल फ़ी रिम्बर्समेंट की जो शुरू हुई थी,
2006 से पार्शियल हुई थी, 2008 से जो है टोटल फ़ी रिम्बर्समेंट, उसमें जो है ज़रा हुकूमत तेलंगाना कुछ कोताही करती है सब। तालीमी इदारे कई जो है बंद हो गए हमारे, चूँकि जो है गवर्नमेंट से रिइम्बर्समेंट हमको वक्त पे नहीं मिलता, और हमारे में वो सकत नहीं है कि हम 2-3 साल बगैर फ़ी रिइम्बर्समेंट के इदारे चलाएं। तो अगर इस सिमत अगर साहब की तवज्जो हो तो ये इदारे जो चल रहे हैं उसमें जो है और तक़वियत होगी साहब। और दूसरी चीज़ ये है कि साहब प्रोफेशनल कॉलेजेस में टोटल फ़ी रिइम्बर्समेंट है, मगर स्कूल और प्राइमरी स्कूल, मिडिल स्कूल, हाई स्कूल में स्कॉलरशिप 800 रुपये है सब। 800 रुपये से जो है साहब वो ऑटो का किराया, उन्हें जो पैरवी करता मेरा फॉर्म क्या हुआ पूछने में, उसमें उससे बढ़ के लग जाते सब, क्योंकि एक बार में कभी कोई मसला हल नहीं होता। तो अगर बुनियादी तालीम को जो है और मुस्तहकम किया जाए और बुनियादी तालीम को की स्कॉलरशिप अगर ज़रा में अगर बढ़ोतरी हो तो मैं समझता हूँ कि कौम ठहरेगी सर। ये ड्रॉप आउट की वजह हमारे कौम में जो कि ख़ुद की बलबूती पे नहीं पहुँच सकें ज़्यादा आगे, वो जो है ये है कि सपोर्ट सिस्टम स्कूल्स का जो है बहुत कम है। अगर साहब बहुत कम रकम है सर। जी नहीं, आप भी जो देते सब, हुकूमत तेलंगाना भी जो थी वो हाई स्कूल को 800 रुपये देते सब। सेंटर से इजाफा माइनॉरिटी स्कॉलरशिप में ज़रा बहुत ज़्यादा तवज्जो करे वैसा है सब। तो जो है वो अगर आप लोग कुछ तवज्जो करे, इल्ला इसके के जो है 2024 में कुछ तब्दीली आए। मौजूदा हालात में तो जो है मौजूदा स्कीम्स जो है नहीं चल रहे हैं सर। मैं नेशनल माइनॉरिटी कमीशन का मेंबर था 2014 तक। वो 9 साल से वो कमेटी रिवाइव नहीं हुई साहब। मेरा नहीं बोल रहा, मैं वो कमेटी से बर्खास्त कर डाली। तो अब इनसे जो है कुछ हमदर्दी की तवक्को ज़रा ज़्यादा तवक्को करे वैसा है सर। तो आप ही से ज़रा ज़्यादा है तवक्को, आप अगर नुमाइंदगी करें तो मैं समझता हूँ कि इंशाल्लाह स्कूल की स्कॉलरशिप में ज़रा इजाफ़ा होना चाहिए सर। तो आप मसूद साहब का मशकूर हूँ कि जो है आप मुझे चंद अल्फाज बोलने का मौका दिए। अरे नहीं साहब नहीं, अरे नाकाबिल ज़िक्र है सब, नाकाबिल ज़िक्र है सब जी। आप कबूल फरमाए इज़्ज़त अफ़ज़ाई सर। मैं फिर से मिनिस्टर साहब का और जो है इदारे का मशकूर हूँ कि मुझे ये मौका दिया गया। आप सब मोअज़्ज़िज़ीन का जो है मशकूर हूँ। इंशाअल्लाह जो है हम एकजुट होकर काम करेंगे और मुझे यकीन है कि कौम तरक्की करेगी। सलाम। Thank you so much, sir. Like all good things, our today's event has reached its climax. I would like to thank each and every one of you sitting here for attending and supporting us. I would like to call Sadiq Ali to recite the dua and conclude this program. You've been a wonderful guest, ladies and gentlemen. الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به
واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين صدق الله العظيم